Yes, good evening everyone. So how are you? कैसा लगा आपको प्रैक्टिस करके? Good evening, ma'am. Yes, good evening. It was a beautiful actually experience. Okay, Alka ji, yes, whoever is going to share will have to take their name, okay, because many might be just listening to the session. Okay. Yeah, and you have to tell me where are you from, okay? Yeah, I'm Dr. Alka Gupta. I'm staying in Kolkata right now. Okay. So yeah. Okay, cool. Yes, please share. So I had read the book Secret before, but I think it had not actually, it was not absorbed actually, or I had not gone to the depth. और अभी आपके साथ ये सेशन करके एक्चुअली अभी समझ में आ रहा है कि व्हाट इट इज अबाउट. उस वक्त तो एक बुक की तरह उसको पढ़ लिया था. सो इट हैज बीन अ इंटरेस्टिंग जर्नी एंड बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. एंड आई एम शेयरिंग इट विद माय चिल्ड्रन. One of my daughters is abroad, so I share the things with her also. Okay. So I had sent her the link also, but unfortunately she's not able to attend because of the time difference. So yeah, so it's a good thing, nice experience. Okay, wonderful. So I want to know how was today's practice when you wrote about the 5 good things, okay, about your close, the relationship that you wanted to improve upon, or the good relationship that you have in your life. How did you feel? Yeah, it was good. About the relationships, actually जो मेरे 3 family members हैं, my husband and my 2 daughters, मैंने उन्हीं के photographs लिए थे. और relationship तो हमारा अच्छा है, but yes of course gratitude करने से और blessings करने से वो और शायद कहीं ज्यादा नजदीक लगने लगा या प्यारा लगने लगा. माने आज आपने किया ग्रेटिट्यूड, तो यू फेल्ट दैट यस लॉन्ग लॉस्ट लव, ऐसी वाली वापस फीलिंग आ रही थी? मतलब हाँ, जो यूजुअली होता है कि आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मैरिज हम एक दूसरे में इतनी ज्यादा खूबियां वो नहीं दिखती. नो, यू स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड. बट फिर उसके बाद लगता है कि जब हम ढूंढते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि यस these were the good things about him that I was not either accepting it or I was not मैं उनको when you are sharing, don't add negatives, okay? You'll have to do 10 blessings. So when you and क्या होता है, जितने ज्यादा लोग सुन रहे होते हैं, okay, उतना ज्यादा आप उसको और एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, to the negatives. This is for everyone. So when you are speaking and sharing, especially when you're sharing in a large group, so you have to know what you are saying. So yeah, yes, sorry to interrupt, but please, I thought जरूरी है. Yes, very true. So that's it. मतलब अच्छा लगा, अच्छी बातें सोचने में, उनके बारे में, again remembering those things. So okay. Yeah. ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग. और आपने बिल्कुल वैसे ही आप सबने फोटोग्राफ्स देख के फिर से प्यार भरी आंखों से एकदम दिल में प्यार भर के थैंक यू बोला उनको. हाँ, अच्छा, किसी ने पूछा नहीं, जब घर पे ही है, सामने ही है, तो फोटो देख के क्यों बोलना है? किसी ने नहीं पूछा ये? आपको ऐसा मन में आया कि जाके ही बोल देते ना, फोटो में देख के क्या बोलना है? Someone felt इतने सारे क्वेश्चंस वो लोग बैकफायर करते हैं ना कि ये सारा एसेंस ही खत्म हो जाता करने का. So true, एकदम सही सोनिया जी, बिल्कुल ऐसे 3 बार थैंक यू बिना मतलब कि अगर उनको बता रहे होंगे. Yes, very true. Yeah, so someone else wants to share how was the practice? कैसा लगा आपको करके? When you wrote about it, did you have to really think, या आपको तुरंत सामने ही थे, हाँ ये चीजें अच्छी लगती हैं, और did you have to go back in the past and think about the good things? How was it? एक बार में याद आ गया, कुछ सोचना नहीं पड़ा. Okay, yes, Neetu ji, you are from हावड़ा. Okay. या तो आपने एक बार में लिख लिया, आपको सोचना नहीं पड़ा. वेरी गुड. एंड यू फेल्ट नाइस एंड होल डे कुछ भी नहीं सोचना. ओके, एंड द होल डे हाउ डिड यू फील? यू केप्ट थिंकिंग अबाउट दोस 3 relationships and the good qualities about them, कि मैंने तो यही 5 लिखी, वो भी तो अच्छी थी, ऐसी भी फीलिंग आई क्या? हाँ, कुछ था कि लिस्ट लग रहा था बहुत बड़ा है, मैं बहुत कम लिख रही हूँ.
ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए। तो जब आप ऐसा सोच रहे हो तो पूरा दिन आपको अच्छा ही लग रहा होगा, राइट? व्हेन यू थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स, व्हेनेवर यू आर सीइंग द हाँ हाँ yeah, okay, very good. So anyone else? Thank you for your sharings. Hi, Priyaji. Hello. So Hi. I also wrote. I actually missed yesterday's session because guests were here, but I heard it overnight, and I start doing it from the morning itself. So Okay. I did that, and of course, because it was those 3 person who are very close, so it was very easy to write 5 things, and then seeing the photographs and saying thank you, and that was a good thing. I mean, I just felt happy. That's it. And as everybody's saying, you wanted to write a couple of more things, but yeah, we restricted ourselves to 5 things. Okay. So I've started practicing thank you. I keep saying this to my husband, thank you, and he keeps, instead of saying welcome, now he keeps saying me back thank you. I said, why are you saying me thank you? Say welcome. So I say him thank you. He answered me back with thank you. So, he's also appreciating you. So both, if both of you are doing gratitude, both are saying thank you, तो और अच्छा रहेगा ना? Both of you are happy feeling. So I tell him usually at night, he asks me what did you heard today or learned today. I tell him. So whatever I tell him, he'll tell me back. Good, very good, very nice. See, you will be creating more magics in his life, because if he starts following even one little thing of gratitude that you are teaching him, like sharing with him. Yeah, and the day I don't tell him that what was today, he was like, you want to learn all the magic by yourself. You don't want anybody else to know it. I said, no, first I want to transform myself so that you should be seeing these things in me, and then you should ask me, what's the secret? Then I'll tell you what's the secret. Okay, wonderful. This is also good. You do the practice, then you can start your own session. Okay, because you should be, many people here. See, I like to see known faces, but I tell you that the day I started sharing or started taking the sessions, I felt immense happiness happening in my life. So many magic. It's like everything is magical. So once you start taking your own sessions, you will see such wonders happening in your life. Okay, so that should be your ultimate thing, that once you do the session on your own, once you do all the practices, then you should start sharing. Okay, start taking sessions, all of you. Okay, so very good. Thank you, Shweta ji. अच्छा, इससे मेरे को एक बात याद है. I had taken kids का session. So there was this wonderful kid. वो तो session attend कर रही थी. Middle of the session, she said, मैम मेरा एक sharing. I said, what happened? बोले मेरा भाई जो हम करते हैं वो चलता रहता है, तो वो वही सुनता रहता है बैकग्राउंड में. Twin brother she had. वो चलता रहता है और वो वही उसके लाइफ में ज्यादा मैजिक होने लगी. वो जो सुन रहा था एंड वो सेम चीजें प्रैक्टिस करने लगा. लाइक थैंक यू फॉर द फूड, थैंक यू फॉर द वाटर, एंड जो भी चीजें वो सुनती थी वो भी करती थी प्रैक्टिस, और संग में वो भी अपना से करता रहता था. एंड शी सेड, मैम उसके लाइफ में ज्यादा मैजिक होने लगे और वो मेरे को अब चिढ़ाता है, तुम तो सेशन कर रही हो, मैं तो बिना सेशन के लाइफ में मैजिक हो रहा है. तो इट्स लाइक इफ यू आर शेयरिंग एंड यू आर इन्फ्लुएंसिंग people will definitely start feeling happy and they'll start seeing magics in their life. Yeah. Okay, thank you. Anyone else wants to share about today's practice? No, but I tell you, this practice is so powerful that after this session ends, or even while doing this these sessions, आज तो मैंने day 3 में किया है. After this, anytime you feel that your life needs some magic, just do this practice. This is the easiest gratitude that you can do, and this is very powerful. When you are doing 3 relationships in a row together, okay, so very strong feelings are generated, and these feelings attract more magic and happiness in your life. Okay, so let's start with the warm up and then we'll start with the reading, because no one else wants to share. Okay, so let's switch on the camera and unmute ourselves and start. So सबको याद है ना, कल भूल गए थे हम लोग करना, तो सबको याद है ना, इसीलिए I'm saying 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. We do it twice. Okay, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Okay, so who wants to read today? जब तक आप डिसाइड करो हम स्क्रीन शेयर करते हैं.
आज में थोड़ी कमी रीडिंग है, सो डोंट वरी। आज का लाइक मेरे तो सारे बहुत सारे चैप्टर्स मेरे फेवरेट, बट ये भी मेरे को काफी अच्छा लगता है चैप्टर। I can read. Hello? सॉरी, या Yes, I can read. ओके, प्लीज आप अपना नाम बताइए। सारंग, Sarang, या एंड वेयर आर यू फ्रॉम? from Aurangabad. ओके, वेरी गुड। It's in Maharashtra. Yes, I know. Good. Yes, thank you. Acha, just give me 1 second. अच्छा, एक बात सब लोग समझ गए हैं कि जब अपन ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारा मैजिकल पावर बढ़ रहा है। मैजिकल पावर कैसे बढ़ता है? हमारी फीलिंग्स अच्छी होती हैं, हम हैप्पी होते हैं, तो अच्छी चीजें होती हैं, है ना। अभी देखिए, अभी तक जो रिलेशनशिप्स के बारे में आज आपने ग्रैटिट्यूड किया है, उनके बारे में आप जनरली किसी और से क्या बोलते हैं? लाइक यू कॉल अप योर मॉम और योर फ्रेंड और योर सिस्टर और योर ऑफिस कलीग, जिसको भी आप फोन करते हैं, आप उनके संग क्या शेयर करते हैं उस पर्सन के बारे में? जनरली आप क्या रोज बोलते हैं कि ये तो इतना अच्छा है, उसने ऐसे ही किया, ये क्या वो क्या, या बोलते हैं पता है उसने क्या किया, मेरा बर्थडे भूल गया, हाँ, या उसने आज इस तरीके से मेरे से बात की। तो आप देखिए, आप जो आपको अच्छा भी लगता है उसके बारे में आप दूसरों से नॉर्मली क्या बात करते हैं? आपको लगता है रोज रोज क्या बोलना, रोज रोज क्या उसके बारे में बड़ाई करना, बट नहीं, जब आप एक दिन कुछ गड़बड़ होता है और वो शेयर करते हैं तो आप कितने स्टेप पीछे चले जाते हैं? एवरीवन रिमेंबर्स हाउ मेनी? 10 एग्जैक्टली। तो अगर आप उस पर्सन के लिए जो आपको ऑलरेडी अच्छा लगता है, जिसके लिए आपको कुछ अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी कि वो तो अच्छा है, बहुत सारी उसमें आपने आज 5 लिखी एंड यू फेल्ट दैट यू वुड हैव रिटन मोर। आप उसके बारे में अगर आप दूसरे लोगों के संग अच्छी बातें बोल रहे हो, उसकी अच्छी क्वालिटीज शेयर कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में और मैजिक्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है नहीं हम रोज रोज क्या उसकी बड़ाई करें, तो आप खुद को भी रिमाइंड कराते रह सकते हो। यस, व्हेन दैट पर्सन इज अराउंड, आप मन में ही बोलो उसको देख के, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, थैंक यू फॉर बीइंग सो वंडरफुल, आई लव द वे योर हेयर इज, आई लव द वे योर स्किन ग्लोज, कुछ भी आप मन में ही बोल सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स सडनली आप उसको ऐसे बोलने लगोगे बहुत ज्यादा, तो उसको लगेगा पक्का इसको कुछ चाहिए, इतने दिन इतने सालों से तो उसने सब नोटिस नहीं किया, अब सडनली ये माला जप रही है, ठीक है। तो आप मन में भी बोल सकते हो, ठीक है। सोनिया जी, आई थिंक योर हस्बैंड इज अराउंड, इज इट? कूल, वेरी गुड। तब तो आप तो मन में ही करिए, ठीक है। सो यू कैन डू दिस इन योर माइंड एंड ट्रस्ट मी, ये जो अच्छे जन के संग इसका इफेक्ट होगा, जिसके संग आपका ऑलरेडी रिलेशन अच्छा है, अमेजिंग मैजिक होएगा आपके लाइफ में। क्यों? क्योंकि मेरे को लोगों ने शेयर किया है, जब वो उन लोगों के लिए ऐसे मन में बोलते हैं जिनके संग उनका अभी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उनके लिए जब आप मन में बोल रहे होते हो और वो सब कुछ कूल हो जाता है, ऑटोमेटिक कूल हो जाता है। आप उनके बारे में मन में अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक सपोज कोई डांट रहा है आपको, या कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, एंड यू वुड हैव नॉर्मली गॉन बैक एंड सेड थिंग्स, बट आप मन में उसके लिए थैंक यू कर रहे हो और आपका वो रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है, ठीक है। उस समय वो सिचुएशन भी काम डाउन एंड कूल हो जाती है। अब क्या है, अब आप देखिए, अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप में जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग ऐसे हेल्थ के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं? आज आपने नो समोसा, आज आपने भुजिया खाई एंड आपके पेट में कुछ कुछ हो गया, सो व्हाट डू यू डू? रोज आपका जो डाइजेशन अच्छा रहता था, आप कभी अपने फ्रेंड्स को बोलते थे पता है हम नॉर्मल खाना खाते हैं, मेरा डाइजेशन सुपर है? आप कभी बोलते हो? कभी नहीं बोलते हो। कब बोलते हो? जिस दिन, एक दिन साल में 365 डेज में से, पॉजिटिव साइड में सोचते हैं 360 डेज वो अच्छे से काम करता है, 5 दिन अगर उसने अप डाउन कुछ कर लिया, वो भी क्यों? क्योंकि आपने उल्टा पुल्टा खाया, ठीक है। यू गेव इन टू योर इंडल्जेंस, एंड उसके लिए आप ब्लेम क्या कर रहे हो? भुजिया खाई थी ना, तमी दर्द हो रहा है, या जो भी इशू है, सर दुख रहा है आपका, हाँ, आप यही चीजें शेयर करते हो, विच इज व्हाट अगेन कंप्लेंट्स अबाउट योर बॉडी, कंप्लेंट्स अबाउट योर हेल्थ। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इफ यू आर डूइंग 1 कंप्लेंट, हम लोग कितने स्टेप्स पीछे चले जा रहे हैं? 10। जब वो पूरे साल आपका सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा था, व्हेन यू वर बोर्न परफेक्ट, हाँ, मोस्ट ऑफ द किड्स 99%, या आई थिंक देयर इज सम परसेंटेज उनको कुछ बॉर्न चैलेंजेस होते हैं, बॉर्न डिफेक्ट्स, लाइक जस्ट टू मेक अस easier to understand, I will say, उनको कुछ challenges होते हैं, कुछ होते हैं स्पेशल एबिलिटीज, हाँ। तो अब बाकी लोग जो हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं? सब अच्छे हेल्दी उसी टाइप के बाल होते हैं, किसी के थोड़े कर्ली, किसी के थोड़े ऐसे
पूरी स्किन इंटैक्ट, एवरीथिंग इज स्मूथ क्लीन, बच्चे कितने क्यूट होते हैं एंड दे आर सो हेल्दी। अब हमने ओवर द इयर्स कंप्लेंट कर करके, ठीक है, अनग्रेटफुल हो के उतने स्टेप अपन पीछे चले गए। तो व्हाट शुड वी स्टार्ट डूइंग? वी शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। अप्रिशिएटिंग मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जन को बोल रहे हैं कि मेरे हेयर बहुत अच्छे, मेरा ये बहुत अच्छा है, नहीं। यू शुड बी ग्रेटफुल फर्स्ट इन योर थॉट्स अबाउट योर बॉडी, देन योर हेल्थ विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। एंड ये मेरे संग हुआ है। लास्ट ईयर व्हेन द सेशन वाज अबाउट टू स्टार्ट, आई हैड सम चैलेंजेस, ओके, ईयर में था कुछ माने ऐसे ऐसे कुछ जो नॉर्मल होते रहते ना, सर्दी जुकाम, पेट दर्द, सर दर्द वाली ये वाली जो चीजें होती हैं, सैराडोन और वो क्रोसिन पेन रिलीफ वाली, वो सब होती रहती थी। बट जब हमने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की, फर्स्ट स्टेप आई डिड वाज आई स्टार्टेड स्पीकिंग लेस अबाउट इट, okay, and then I kept on being grateful for the other parts which were functioning perfectly well। ठीक है, जैसे आज आपने उन रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड किया जो ऑलरेडी अच्छे थे, वैसे ही हमने उन बॉडी पार्ट सिस्टम्स के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हुआ जो ऑलरेडी अच्छे थे। ठीक है, एंड मेरे को किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा और हम खुद ही ठीक हो गए। ठीक है, माने लाइक अब अगर इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा तो अलग बात है, बट वो भी बहुत जल्दी ठीक हो गया। ठीक है, तो रॉन्डा बर्न ये नहीं कह रही हमसे कि हम लोग दवाई वाई छोड़ के ग्रैटिट्यूड करने लगे। शी इज नॉट टेलिंग अस दैट, बट लेट्स सी व्हाट मैजिक्स कैन हैपन विद ग्रैटिट्यूड इन आवर हेल्थ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Sarang? Yes. Yeah, please read. Uh, Day 4. Day 4, magical health. Yeah. So now when we are looking at the photograph, we see, जैसे पहले डॉक्टर लोग का बैग होता था, we have seen it only in the movies, right? आजकल कोई ऐसा डॉक्टर बैग नहीं लेता है ना, but we have seen it in the movies. Enough movies we have seen. एक डॉक्टर का बैग है। अगर आपको किसी को लग रहा है ये लेडी का क्लच है तो एकदम भी नहीं है। ठीक है, आजकल वापस ये फैशन में आ गया, मेरे को सडनली इस बार ऐसा भी लगने लग रहा था। ठीक है, बट ये वो नहीं है। दिस इज अ डॉक्टर बैग एंड आप देखिए एक स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ रखा है। स्टिल कांट मेक आउट व्हाट दिस इज। कैन एनीवन गेस व्हाट दिस इज? ये जो ये वाली चीज रखी हुई है यहाँ पे, It's for checking blood pressure. oh, is it that? Okay. I think so. Could be something is kept there, and then we see this X-ray, yeah, and अब आप देखिए यहाँ पे मैजिक डस्ट तो दिख रही है। अब डॉक्टर के उसमें यहाँ पे क्या ये वाटर ग्लास एंड एप्पल क्यों रखा हुआ है? One apple keeps a doctor away. यस, बिल्कुल। तो अब आप देखिए क्या रॉन्डा बर्न हमको ये हिंट दे रही हैं कि एप्पल खाएंगे, अच्छे से ग्रैटिट्यूड करेंगे, पानी पिएंगे और हम लोग ठीक हो जाएंगे और डॉक्टर हमको नहीं चाहिए। could this be the reason? बट अब देखिए इस मैजिक भी इससे यहीं से सब कुछ ये स्पार्कलिंग हो रहा है। या सो इट इज टोटली अप टू यू, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, बट डेफिनेटली बहुत सारे हिंट्स हम लोग को रॉन्डा बर्न ने दिए हैं। या is it too big, the screen, or should I reduce it a little bit? It's okay. Okay, ठीक है। Yeah, please start. The greatest wealth is health, said by Virgil in 70 BC, 19 BC, Roman poet. Yeah, so greatest wealth is health. अब देखिए ग्रैटिट्यूड का चैप्टर है और वो हमसे कह रहे हैं ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो आप लोग सब लोग को ऐसा लगता है ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ? मनी नहीं चाहिए, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स भी नहीं चाहिए, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। Yes. Yes, Health, definitely. there, everything is there. yes, very good. तो अब ये कैसे, और सपोज किसी को लगता है कि नहीं हेल्थ तो सबकी ठीक ही रहती है, पैसे सबसे इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ तो क्या है, डॉक्टर ने एक दवाई दी, सर्जरी हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कितने सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है। दे हैव बीन सफरिंग, दे हैव बीन अनएबल टू डू देयर एक्टिविटीज प्रॉपर्ली। कितने सारे लोग ऐसे हैं, उनसे अगर हम पूछें तब आपको लगेगा कि हाँ हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, वो जो कभी थोड़ा सा टमी एक होता है या वो हेडेक होता है, ठीक है, या कहीं आपकी छोटी सी उंगली में चोट भी लग जाती है या कहीं बर्न हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, कितना लगता है ना कि हो आप बेस्ट जगह पे हो, आप बेस्ट रिसोर्ट में हो, बट अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको फीवर है या आपने ओवर ईटिंग करके गैस भी कर लिया वहां पे लाइक पेट में, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यू वुड फील कि बस जल्दी से घर जाना है मेरे को वापस, या आप वहां पे रूम में ही रहोगे, किसी से बात भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है।
राइट, ऐसी ही फीलिंग आती है ना। तो हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ दैट वी हैव। अगर आप और उसको डीपली सोचो, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब छोटी मोटी चीजें तो ठीक ही हैं, ये तो हो जाता है, हमारी मूवीज आप देखिए, ठीक है, चाहे आप ब्लैक, आई थिंक काफी जने मूवी देखते हैं बिकॉज वी कीप रेफरिंग टू मूवीज बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड विजुअल कनेक्ट विद अस, या तो वो बहुत अच्छे से हमको समझा देते हैं। आपने ब्लैक देखी होगी, है ना, सो यू सॉ हाउ रानी मुखर्जी लाइफ वाज, या बर्फी देखी आपने, प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर दोनों, you don't you that time didn't you feel blessed that we have like so much, और उसको अपन वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ, और जो हमारी थोड़ी मोड़ी जो भी छोटी छोटी इश्यूज होती हैं वो हमको लगता है कितनी बड़ी हैं। हाँ, और कितने सारे लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनके पास इतने सारे चैलेंजेस हैं, उनके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। हम लोग, हमारी एक छोटी सी इशू है, चाहे वो एक पिंपल हो, चाहे वो हेयर फॉल का इशू हो, चाहे वो थोड़ा सा फैट हो, वो भी तो उसमें ही आ जाता है, इंडाइजेशन हो या स्किन का कलर हो, एनीथिंग, वी थिंक ऑफ दोज थिंग्स एंड थिंक दैट हमारे ऊपर कितना भगवान का वो है, क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग नहीं है, हमारे ऊपर भगवान जी की कृपा कम है और हमारे को ये सारी इश्यूज हैं, ठीक है। बट आप देखिए हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। डिड यू एवर थिंक ऑफ दैट? आप रोड पे जाते हो, in our country we have lots of people who are on the streets and they have been disabled and their families have left them। उनको देख के आपको कभी लगा कि नहीं हम कितने ब्लेस्ड हैं कि भगवान जी ने हमको इतना ब्लेस किया है कि हम आज तक फुल्ली एकदम अच्छे से अपने हेल्थ में हैं, ठीक है। कुछ अगर है भी इशू तो वो कैसे ठीक होगी, क्या होगी, वी विल बी लर्निंग इन दीज चैप्टर्स, ओके। सो प्लीज रीड। Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us, without our health, we have nothing. या ये भी होता है जब हम सबसे जब ऑन एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज अ लिटिल हेल्दी, अभी भी थोड़े थोड़े हेल्दी ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, बट इन स्कूल आई वाज लिटिल हेल्दी एंड बोथ माय सिस्टर्स वर वेरी थिन, ठीक है। जब हम हेल्दी बोल रहे हैं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। तो क्या हुआ, धीरे धीरे एवरीवन सेड ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, खूब सिटअप्स कर लिए एक दिन, बहुत सारे सिटअप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल डेज ओनली। अब तो हंसे तो पेट में दर्द होए, तो पता ही नहीं यहाँ भी कहीं ऐसा किसी के संग हुआ है जिसने जब शुरू में कभी सिटअप्स किए होंगे, ऐसा हुआ है किसी? ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल है मैंने ना, आज ही योगा किया आफ्टर 10 days और पूरा टाइम सो रही थी क्योंकि लेग्स एंड बॉडी वाज एकिंग सो बैड, सो इट हैपेंस स्टिल। ओके, सो व्हाट यू डू इज, अच्छा ठीक है, वो तो उसमें हम लोग आप आएंगे कि उसको कैसे करना है ठीक, हाँ, या कैसे ग्रैटिट्यूड देके आप उसको ठीक करोगे। बट उस समय ये लग रहा था अरे इतनी सारी बॉडी में इश्यूज हैं और उनकी याद हमको तभी आती है जब वहां पे दर्द होता है, जब सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा होता है, अपन सोचते ही नहीं उनके बारे में। कभी कभी सर दर्द होता है तो मे भी कभी कान में भी दर्द होने लगता है क्योंकि कनेक्टेड है, टूथ एक होता है तो खा नहीं पाते हैं तो कान और इधर उधर दर्द हो जाता है। so many times we have gone through this, but what happens the moment everything is hale and healthy, like hale and hearty, fit and fine, हम लोग फिर भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड करना। फिर जब दोबारा कोई ब्रेकडाउन होता है तब अपन उसके बारे में ग्रैटिट्यूड तो छोड़िए, पहले उसकी वैल्यू करना थोड़ी थोड़ी शुरू करते हैं, ठीक है। बट अगर अपन उसी समय सीख जाएं और पूरे टाइम अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, आवर हेल्थ विल ऑलवेज बी मैजिकल। और जब हेल्थ अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। आपको बारिश अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपके सर में दर्द है, आपको वो जो पानी की आवाज है उससे भी आपको लगेगा कब ये बारिश बंद हो, ऐसा लगता है। या एंड I'll share one more thing, आज पता नहीं इसके पहले सेशन में नहीं किया, my family generally हम लोग साल में एक आध बार all of us go on a holiday। इसके पहले तक, सेशन के पहले तक हमेशा ये होता था, हम जब भी जाते थे हॉलीडे पे, I was always sick। गोवा गए थे 3 years पहले, I was only in the room। हाँ, एक दो बार थोड़ा बाहर निकले, I got fever over there। फिर शिमला गए, सेम थिंग हैपेंड, एवरीवन इज देयर, वी आर इन अ गुड प्रॉपर्टी, सब सिस्टर्स लोग आते हैं घूमते, मतलब वहां भी हम बीमार हो गए। फिर जब अपनी फ्रेंड के संग हम स्विट्जरलैंड गए, वहां भी बीमार हो गए। तो इट वाज लाइक कि हमेशा हम घूमने जाते थे और वहां जाके बीमार हो जाते थे। बट जब से हमने ये सेशन और ये ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया है, तब से लाइक माय हेल्थ हैज बीन परफेक्ट, ठीक है। थोड़े बहुत कुछ अभी ऐसे सिचुएशन के कारण जो हम लोग दिन भर काढ़ा वाड़ा जो भी पी रहे हैं वो अलग बात थी अब तक, अब तो वो भी सब कुछ ठीक हो गया है। बट अदरवाइज हर ट्रिप में इट यूज्ड टू बी लाइक दैट, बट अब सब कुछ एकदम ठीक हो गया है और बहुत इजी है। इट इज लाइक सो इजी, आपको लगेगा हमको पता क्यों नहीं था ये,
Huh? So we'll just find out how easy it is to take care of our health, how easy it is to be grateful for our health. Yeah. Easy. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. Hmm. While we rarely think of our health when we are well, you will you will have felt the truth of those words even when you had something minor like cold or the flu. Hmm. And you were bedridden and you were bedridden. When you were not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. या तो अब देखिए इटालियन प्रॉवर्ब जो ये कह रहा है कि ही हु एंजॉयज गुड हेल्थ इज रिच, जबकि उसको पता नहीं है। अब अगर हम आपको ऐसे बोलें कि रिच कैसे हो गए, गुड हेल्थ तो है ही। अगर हमारी गुड हेल्थ नहीं होती है तो आपके पैसे किस में खर्चे होते हैं? मेडिसिन, डॉक्टर, ये डॉक्टर की दवाई नहीं हुई ठीक तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं लगा तो आप कहीं और जाओगे, एक्यूप्रेशर कराओगे, फिजियोथेरेपी कराओगे, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, माने एवरीथिंग वी ट्राई, राइट? जिसके है ठीक है वो लोग तो सुपर ब्लेस्ड हैं, जिनके नहीं है तो जितने नुस्खे होते हैं, चाहे वो घर के हों, चाहे वो डॉक्टर के हों, चाहे वो ऑनलाइन हो, वी ट्राई ऑल ऑफ दैट। हाँ, लाइक व्हेन आई एम सेइंग आई एम मीनिंग मी, ओके? और उसमें क्या जाता है? मनी जाता है। और हम लोग बोल क्या रहे होते हैं? कंप्लेंट कर रहे होते हैं, हेयर फॉल, हेयर फॉल, हेयर फॉल गूगल कर देते हैं, कोल्ड कफ, कोल्ड कफ, कोल्ड कफ गूगल करते हैं, नी पेन, बैक पेन, ये गूगल भी करते हैं और बोलते भी रहते हैं और कंप्लेंट भी करते रहते हैं। बिकॉज इफ वी आर सेइंग समथिंग, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर अट्रैक्टिंग इट इन आवर लाइव्स। या तो जब हमारी हेल्थ ठीक है, वी आर डेफिनेटली रिचर बिकॉज हमारे पैसे ये सब चीजों में बच रहे हैं एंड वी कैन यूज इट इन समथिंग दैट वी एंजॉय, राइट? सो इसलिए हेल्थ, अ हेल्दी लाइफ विल डेफिनेटली मेक अस मोर वेल्दी। एंड ये तो हम लोग समझ ही गए हैं। थोड़ा सा माइनर सा भी जो कोल्ड और फ्लू होता है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, आप नेटफ्लिक्स ही नहीं देखते उस समय, तो ऐसा लगता है कि नहीं इसको भी देख देख के बोर हो गए। ऐसा हुआ है आपके संग? जब ठीक होते हैं तभी ये सब अच्छा लगता है। पहले सोचते थे ना बीमार है तो कितना अच्छा दिन भर लेट के टीवी देखेंगे, लेकिन ऐसा मन करता है उसको देख देख के भी यू स्टार्ट फीलिंग नॉट नाइस। या तो इसीलिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है एंड एक्चुअल में उस समय लगता है कि बस एकदम फिट एंड फाइन हो जाए। Yes. Please read. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. या तो हेल्थ एक गिफ्ट ऑफ लाइफ है। हमने ये डिसाइड नहीं कर पाया कि जब हम बॉर्न हुए थे कि मेरी आईज परफेक्ट हैं, कि मेरी नोज ठीक है, कि मेरे ईयर्स भी 2-2 हैं, मेरी फिंगर्स भी सब कुछ ठीक ठाक हैं। ये हमने नहीं डिसाइड किया था, ये भगवान जी ने, ये सुप्रीम पावर ने, ये इस यूनिवर्स ने ऐसा करके हमको यहाँ पे भेजा था। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लाइफ में। अब अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो हमारी हेल्थ परफेक्ट रहेगी, हमेशा अच्छी रहेगी। तो अब आप समझ गए हो कि हमको क्या करना है कि हमारी हेल्थ अच्छी एंड फिट रहे। ठीक है, आप बोलोगे नहीं नहीं कुछ कुछ ब्रेकडाउन है, ये भी करना है वो भी करना है, तो वो क्यों हुए हैं और कैसे हुए हैं वो आप समझ गए हो, क्योंकि आप अनग्रेटफुल थे। ठीक है, कैसे होता है कि अपन थोड़ा सा वेट इधर उधर था, वेट ही नहीं कम हो रहा, वेट ही नहीं कम हो रहा, पानी पीने से भी मोटे हो जाते हैं और उसको देखो कितना खा रही है, हमेशा पतली रहती है या हमेशा फिट रहता है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, हम हमारे सिस्टम के लिए, हमारी बॉडी के लिए ही कंप्लेंट कर रहे हैं। ठीक है, और एक बार नहीं सोच रहे हैं, हमारे सेल्स में भी वो एक एक वही डेटा सब जगह जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स रीड एंड सी हाउ वी कैन improve our health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even that he or she has will be taken from him or her. Yeah, the same code that we have been reading is applicable in each and every area of our life. ठीक है, आप रिलेशनशिप के बारे में बात करो, हेल्थ के बारे में बात करो, वेल्थ के बारे में बात करो, किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे, अगर आप ग्रेटफुल हैं आपकी लाइफ में वो बढ़ता जाएगा। अगर आपने एक कंप्लेंट की है तो 10 स्टेप पीछे जाएंगे, कंप्लेंट करते जा रहे हैं तो वो आपके लाइफ से टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। क्या You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of
health to you. Hmm. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. या तो अभी रौंडाबन हमसे कह रही है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो सब कुछ कर रहे हैं, एकदम एकदम हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, बाहर का भी नहीं खाते हैं, फिर भी वो बीमार रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं? यू माइट हैव सीन पीपल लाइक दिस कि एकदम हेल्दी सब कुछ, कि बाहर का पुचका भी नहीं खाएंगे, घर का ही पुचका खाएंगे, ग्लव्स पहने हुए आदमी से पुचका खाएंगे, फिर भी उन्हीं की तबीयत खराब हो जाती है। अभी इससे पुचका से ही मेरे को एक बात याद आई। अभी आई वाज इन उदयपुर विद माय फैमिली, तो वहां भी हमने पुचका खाया था। वहां पे पुचका चाट स्टॉल लगा हुआ था होटल के अंदर ही, सो वी हैड पुचका। हम लोग 3 या 4 दिन थे, रोज पुचका खाया हमने वहां पे। ठीक है, पुचका मतलब पानी पूरी, दोस्त डोंट नो। तो और क्या हुआ, ठीक हमारे बगल में एक और लोग खा रहे थे, पुचके का पानी एकदम ठीक नहीं, उसको खा के मेरी तबीयत खराब हो गई। आई वाज थिंकिंग, होटल में खा रहे हैं, बिस्लरी से ही वो बना रहा था और स्पून से पानी डाला था, ये भी नहीं कि पुचके को उसके अंदर डुबो रहा हो अपने हाथ से। ग्लव्स तो पहना ही हुआ था, मास्क भी लगाया हुआ था। आई वाज थिंकिंग, पुचके से इनकी टमी कैसे अपसेट हो गई? हम लोग मेरी पूरी फैमिली 4-5 दिन से पुचका खा रही थी, एंड आई एम द ओनली वन हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। और किसी की तबीयत ठीक नहीं हुई, आई मीन किसी की तबीयत, सबकी तबीयत एकदम ठीक थी, ऐसा कैसे? तो आप जो लोग, इट्स लाइक दे आर नॉट गिविंग ग्रैटिट्यूड, ओके, दे आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर देयर हेल्थ, इसलिए उनके लाइफ में ऐसा होता है। ठीक है, तो जब हम हमारे हेल्थ को ग्रेटफुल होंगे, उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, तभी हमारी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, एंड आप एक दिन से ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग मैजिक्स हैपनिंग। ये जो रौंडाबन यहाँ पे बता रही ना, लिटिल एक्स, पेन्स, मोल्स, स्कार्स, ये एक्चुअल में हो रहे हैं। हम हर सेशन में बताते हैं, बट इस फिर से बताना ही पड़ेगा ना, सम पीपल आर न्यू आल्सो हियर। जब ये वाला प्रैक्टिस हुआ था, तो जब यही लाइन पड़ी थी, तो कुकिंग कुछ कर रहे थे किचन में, तो कुकर से हम को चोट, माने लाइक एक बर्न हो गया, मार्क हुआ। आई थॉट ठीक है, हम भी प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड, एंड आई वुड एवरी डे थैंक यू फॉर माय क्लियर स्किन, थैंक यू फॉर माय क्लियर स्किन। हमने ये नहीं बोला कि ये मेरा मार्क चला जाए या मार्क ना पड़े। ठीक है, थैंक यू फॉर माय क्लियर स्किन, और वो मार्क एक्चुअल में नहीं पड़ा। ठीक है, एंड उसके पहले जहां भी लगे हैं वहां पे मार्क है। तो when you are practicing gratitude, all these things will start happening. ठीक है, बर्थ मार्क का वो आपका रौंडाबन is telling us, बर्थ मार्क, मोल, स्कार्स, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। एक्चुअल में यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक, मोर हैप्पी। कितने लोग होते हैं ना, एकदम लाइफ एकदम फिट एंड फाइन है, सब कुछ ठीक है, बट उनको देख के आपको लगेगा कि उनको एक तो सिंकारा पिला दो, ठीक है, या उनको कॉफी पिला दो। ऐसा लगता है, यू हैव सीन सम ऑफ योर फ्रेंड्स हमेशा लेट बैक, लेटे हुए रहते हैं, उनसे उठ के कुछ होता ही नहीं है, कोई इशू नहीं है उनकी लाइफ में। हम लोग को लगता है कि वो लेजी हैं, नहीं, उन लोग को ऐसे ही रहता है कि उनमें वाइटैलिटी एंड एनर्जी नहीं, उनको एक्चुअल में सिंगारा चाहिए होता है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो क्यों होता है? सॉरी, ठीक, कहाँ से कुछ याद आता है, बचपन में सिंगारा का ऐड आता था ना, या तो ऐसा होता है लोगों के संग। अच्छा, हम लोग सोचते हैं हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना। एक फिजिकल हेल्थ हो गई आपकी एक इमोशनल हेल्थ हो गई, आपकी एक मेंटल हेल्थ हो गई, और आपकी एक सेक्सुअल हेल्थ हो गई। ठीक है, तो हर चीज जब आपकी फिट एंड फाइन है, तभी आप परफेक्टली हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो इट इज अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। कोई भी एरिया में अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, ठीक है, या आपको थोड़ा सा मेंटली अगर आपको लगता है आप थोड़े वीक हो, या आपको थोड़ा सा लगता है, तो आप इसका मतलब वहां पे ग्रेटिट्यूड कम दे रहे हैं। एवरी एरिया इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन हेल्थ ऑल्सो। ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड इन द राइट एरियाज। आप जिसके लिए भी नहीं बोल रहे हो, उसके लिए पहले तो बोलना स्टार्ट करो। ओके, बिकॉज वी हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव दिस परफेक्ट फिट एंड एबल बॉडी। या As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body, and all of it happens like magic. Yeah, तो अब रौनक बन कह रही है, just one second, we will learn in a later practice. तो आज की प्रैक्टिस में ये नहीं है। She is telling us that daily practice of gratitude से जिस एरिया को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से काम करता है, एंड बिल्कुल मैजिक की तरह ही होता है। तो ये आज की जो प्रैक्टिस है, आपने देखा हम लोगों ने उस रिलेशनशिप पे वर्क किया जो अच्छी थी, जो हमारे पास पहले से थी। तो हम लोग हेल्थ में भी उसी एरिया पे पहले वर्क करेंगे जिसमें हमारी ऑलरेडी हेल्थ
फिट एंड फाइन एंड अच्छी है, हम लोग उसके लिए पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे और बाद में और चीजों पे वर्क करेंगे. या प्लीज रीड. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic, said by John Henry Jowett, 1864-1923, Presbyterian preacher and writer. Yeah, so a Presbyterian preacher and writer is telling us that gratitude ही वैक्सीन भी है, एंटीटॉक्सिन भी है, एंटीसेप्टिक भी है. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो दवाई खा रहे हो आप उसको ग्रैटिट्यूड करके खा रहे हो, आप जो खाना खा रहे हो आप उसको ग्रैटिट्यूड करके ग्रहण कर रहे हो, खा रहे हो. रिमेम्बर आपके घर में जेनी लोग तो आई थिंक करते ही हैं, सीनियर्स भी करते हैं, बिफोर दे ईट दे टच देयर फूड, लाइक टच देयर फूड इन द सेंस लाइक दे प्रे टू देयर फूड एंड ईट. एंड अब्रॉड में तो दे हैव दिस होल थिंग ना कि वो लोग पहले थैंक्स गिविंग करते हैं, द होल फैमिली प्रेज टुगेदर एंड देन ईट्स देयर फूड. हमारे कई घरों में अभी भी ये होता है कि भगवान को पहले भोग लगता है फिर खाना खाया जाता है. ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, विल रीड ऑल ऑफ दैट इन दिस बुक. बट रॉन्डा बर्न इस कोट से हमको ये बता रही है कि ग्रैटिट्यूड अगर हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे किसके लिए कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड आप कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में हेल्थ आपकी एकदम ठीक रहने वाली है. क्या प्लीज रीड. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. या तो अब ये जो डिग्री की बात हो रही है, सब लोगों ने यहाँ पे स्कूल में वो वाला एक्सपेरिमेंट किया है कि आपने एक वो ग्लास रखा, इधर से लाइट आई, उधर से लाइट गई, वो जिस एंगल में लाइट आती है उसी एंगल में जाती है, जितने डिग्री में आती है उतने डिग्री में जाती है. राइट, आई एम फॉरगेटिंग उसका क्या नाम होता है उस एक्सपेरिमेंट का. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. या तो आप देखिए रॉन्डा बर्न हमको फिर से वही बता रही है कि हमारे लाइफ में हमारी हेल्थ भी उसी डिग्री में कम होती है, या जितनी डिग्री में हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड किया है. अब आप बोलोगे ग्रैटिट्यूड का भी डिग्री होता है. होता है. कौन सा डिग्री होता है ग्रैटिट्यूड का? फीलिंग. जितने फीलिंग से आपने ग्रैटिट्यूड किया है, ठीक है, उतनी फीलिंग से नहीं, उतने पावर से आपकी हेल्थ अच्छी होगी. जितने कम फीलिंग से आपने ग्रैटिट्यूड किया है उतना तरीके से इट इज ऑल प्रोपोर्शनल. जितना फीलिंग आप करोगे ग्रैटिट्यूड में उतनी ही आपकी हेल्थ में वो रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, और जितनी डिग्री से आप अनग्रेटफुल होकर अपने हेल्थ के बारे में कंप्लेंट करते रहोगे वैसा ही असर आपके हेल्थ पे होगा. ठीक है, एंड किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि अगर आप अनग्रेटफुल हो रहे हो तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप एनर्जेटिक नहीं हो, आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा इसको जगा दो, कॉफी पिला दो, क्लैरिटी ऑफ थॉट, एवरीथिंग. इट्स लाइक शी इज टेलिंग अस एनर्जी, वाइटैलिटी, इम्यून सिस्टम, क्लैरिटी ऑफ थॉट, everything in your body is dependent on the gratitude that you show to it. Yeah. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. या तो अब जब आप 2 दिन से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सोने के टाइम पे आप मैजिक रॉक ले रहे हैं, सुबह ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो आपको अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, हैप्पी फीलिंग्स आती हैं. राइट, तो अब जब आप हैप्पी फीलिंग्स में रहते हो, आप गूगल कर लेना, तो गूगल करने की जरूरत नहीं, रामदेव जी हम लोग को ये सब बहुत सारी बातें बताते रहते हैं कि आप खुश रहो, ये रहो, तो क्या होता है आपके सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है. सेल्स में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी तो अच्छे से फंक्शन करेंगे, अच्छे से फंक्शन करेंगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी हेल्दी फिट रहेगी. जब आप स्ट्रेस में रहोगे, आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, आप पूरा टाइम कंप्लेंट कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी सेल्स में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है. वो क्यों हो रही है? जब आप इस टाइप की चीजें करते हो तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी अच्छे से नहीं होती फंक्शन, आपका हार्ट ज्यादा पंप करने लगता है. राइट, एंड ब्रीदिंग आपकी थोड़ी उतनी डीप नहीं रहती, शैलो रहती है, तो आपके सेल्स में ऑक्सीजन कम पहुंचती है. ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगे. जब वो फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक नहीं रहेगी, एंड डिजीजेस आने लगेंगे. राइट, सो दिस इज वेरी साइंटिफिक, वी ऑल नो इट, बट आपको ये समझना है ग्रैटिट्यूड करने से आपकी फीलिंग्स अच्छी होंगी एंड योर हेल्थ इज इंप्रूविंग. बस इतना सही आप
अभी समझ लीजिए। एंड स्टडीज हैव रिवील्ड कि अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी हील हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबने यहाँ पे जो 48 जन है, सबने सीक्रेट मूवी देखी हुई है। तो सबको नहीं देखी सरंग आपने, आप प्लीज देख लेना। उसमें वो शो कर रही है वो लेडी कि उसको कैंसर था और उसने सिर्फ हंस हंस के ग्रैटिट्यूड कर करके अपना कैंसर ठीक कर लिया। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दैट सीन? या राइट। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वो वाला तो एग्जाम्पल अमेजिंग था कि वो जो पर्सन फ्लाइट से जिसका एक्सीडेंट हो के वो गिर जाता है, हाँ, और नेक डाउन, हाँ, पूरी उसकी तबीयत वो हो जाती है एंड दैट गाय कुड वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है। वो क्या कर रहा था, उसका पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कितना स्ट्रांग था, ठीक है। जब वो अपने आप को पूरे टाइम यही बोल रहा था, आई विल वॉक आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल, डिड ही स्टार्ट बीइंग अनग्रेटफुल ऑफ दिस बॉडी, दिस एंटायर बॉडी, कि मुझको क्या हो गया है, मेरे संग ही क्यों हुआ। हम लोग ऐसा करते हैं ना, ये मेरे संग ही क्यों होना था, मेरी फैमिली में ऐसा क्यों हुआ, वी डू दिस। उसने कुछ नहीं ऐसा किया एंड ही कुड वॉक आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल। एंड अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है कि नहीं, 2 एग्जाम्पल से नहीं होता है, यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक। सीक्रेट की जो वेबसाइट है उसमें इतने सारे लोगों ने अपने फीडबैक दिए हुए हैं, ठीक है। कि अगर छोटी मोटी चीजों पे आपको लगता है नहीं ठीक हो सकता है, वहां पे लोगों ने बहुत सारी चीजें इस टाइप की शेयर की हुई है, ठीक है। सो इफ यू स्टिल फील कि नहीं ग्रैटिट्यूड करने से नहीं होता है, आई एम श्योर आप सब फील करते हो, इसीलिए आज भी यहाँ पे आए हुए हो। एंड स्टडीज ये शो करती हैं कि अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जल्दी हील होते हैं और हमारी लाइफ, जो लाइफ नॉर्मल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, हम सबकी अलग अलग है, वो 7 years और बढ़ जाएगी, ठीक है। या प्लीज You can see in the taste of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is the lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. या तो रॉन्डाबन हमसे यही कह रही हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एज है उससे आपको यंग नहीं फील हो रहा है, शी इज नॉट सेइंग कि आपकी जो एज आप वैसे ही लगो, शी इज सेइंग नो, यू हैव टू फील यंगर देन योर एज। इफ यू डोंट फील दैट मींस यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यस सिंकारा की जरूरत है आपको, मतलब आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ग्रैटिट्यूड, और हम सबकी लाइफ चेंज होगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, ठीक है। एंड आप खुद नोटिस करना, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन दिस, कि आपकी हेल्थ आपको ड्रीम्स में आपने किसने किसने हेल्थ के बारे में लिखा है? Any of you? या उसमें ऐसी छोटी मोटी चीजें लिखी हैं कि थोड़ी बड़ी बड़ी इश्यूज लिखी हैं? ठीक है, तो वो आप अपना अभी रखिए आप उसको। हम लोग पहले पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग अपना अभी पावर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। पावर कैसे इंक्रीज, अभी आप सोचिए, और बताते हैं आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में। ये जो डेली प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं, इट इज लाइक यू आर चार्जिंग योर फोन, ठीक है। जब तक आपका फोन पूरा चार्ज नहीं होएगा तब तक आप उसमें मूवी भी नहीं, आपके फोन में बहुत सारी चीजें हैं, मूवीज भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं, इतने सारे एप्स तो हैं ही हमारे पास, हाँ, और भी पता नहीं क्या क्या है। लेकिन अगर आपके फोन में चार्ज ही नहीं है, will you be able to see any of that, use any of that? You won't be able to make a call also. तो अभी हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड का पावर इंक्रीज कर रहे हैं, अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन यूज इट इन द ऐप और द एरिया दैट वी वांट टू यूज इट, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ अपना ग्रैटिट्यूड कलेक्ट करके अपने फोन की बैटरी बढ़ा रहे हैं, ओके। या The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you're grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. या तो अब आपको क्या करना है, we'll do a little visualization. अगर आप खुद से पढ़ रहे होते तो आप like when I read the book on my own, मैंने तो खुद ही सारा पढ़ा था, बट हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे विजुअलाइजेशन करते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सिट डाउन, ओके. एंड जो लोग लेटे हुए इसलिए बोल रहे हैं बैठ जाओ, वरना मे बी आप सो जाओ, ठीक है. सो आई डोंट वांट दैट. So I request all of you to sit down and switch on your cameras, please.
So Sarang, now I will read and then I'll ask you again once the visualization is over to continue reading. Okay. Yeah, so I request all of you to, sit down straight. Yeah, you have to close your eyes. ओके जिन लोग का कैमरा ऑफ है आई एम जस्ट अज्यूमिंग आप लोग सीधे बैठे हुए हैं और आपका सीधे बैठे हुए हैं एंड आपकी आंखें बंद हैं अनलेस यू आर कुकिंग वॉकिंग डूइंग समथिंग तब आप प्लीज आंख मत बंद करिएगा जस्ट लिसन टू इट सिट डाउन एंड देन क्लोज योर आईज या टेक अ डीप ब्रेथ इन and a long breath out. One more time. Take a deep breath in and a long breath out. Feel your breath. Keep breathing. Gently, slowly, keep breathing. Keep your focus on your breath. When you got up in the morning, you walked to the toilet. You wore slippers or you walked barefoot. You went to the toilet. You came out, walked to the kitchen, sat down on a chair maybe. You walked the whole day to some place or the other in your house or when you were out. Your legs did all the walking for you. Can you visualize your feet, the groomed nails, or you need to cut them tomorrow? Your favorite footwear? Do you like to wear socks? The women, you want to paint your toes? Your strong legs. How many of you remember walking on the school ground? The day you went to school? Black shoes, white socks, your uniform. You were walking away from your family to the school. We were playing in the ground, running around. You could do all of that because of your legs, your strong legs. If you're married, visualize yourself walking to your spouse, dressed in your best attire, holding the garland. You could walk to the stage. When you walked out of the hospital with your baby in your arms, it was your legs, your strong legs, that made you do that. Your strong legs. You enjoy dancing? Did you dance in the school or in a nightclub, at a friend's Sangeet, Garba? Your legs made that possible. Your strong legs, your strong knees. You climb the steps in a temple, go shopping in a mall, run after a kid, hiking, feeling the ocean on the beach, the gentle beach, the gentle waves. Your strong legs helped you do that. Thank you for my legs and feet.
Thank you, thank you, thank you. When you got up in the morning, did you pick up your phone with your hands? Saw the time? Did you wear specs with your hands? Open the door to the toilet with your hands? Your able hands. You could do all your activity through the day, all your life with your hands. You remember holding your mom's hands when you were a kid? Your father's hand? Hugging them? You could do all of that because of your hands. Each activity that you do in the day is because of them. Messaging, taking calls, holding a book, dressing up, cooking, eating, combing your hair, shaving, everything that you do is because of your hands. Even the food that you eat, all of it is possible because of your hands. Without the use of your hands, life will be so challenging. You remember the caress of a child, the touch of hair, all of that you could do because of your hands. Thank you for my arms, hands, and fingers. Thank you, thank you, thank you. Feel it. Your amazing senses, all of them. What did you eat today? Was it a cup of water with lemon early in the morning? Your favorite tea or coffee or juice? What was the first sip that you had? Do you like a rasgulla? Mangoes? Chocolates? Cookie? What did you have for dinner? You like ice creams? Shakes? Or some of your favorite drink? My favorite, pani puri. Is it yours too? An amazing sense of taste. Thank you, thank you, thank you. Thank you for this amazing sense of taste. You are on the beach or on your favorite holiday spot. What do you smell? The fresh flowers, the ocean, the grass, or your favorite perfume? Or can you smell the first rain on the ground? Or is it the dinner cooked by your mom? Or the Johnson's baby smell of your kid? Or your favorite lily, rose? Thank you for my wonderful sense of smell. Thank you, thank you, thank you. Now on the beach, do you feel the do you feel the sand? Do you remember the stone in your hand, your magic rock? The softness of a baby's skin? Or do you remember the touch of your spouse? The baby's kiss on your cheek? Your hair on your skin?
or a hug when you are in need of some love. Do you remember all of that? Thank you for my precious sense of touch. Thank you, thank you, thank you. Wow, my wonderful eyes. I get up and open my eyes. I see each and everything around me. I see the time on the phone, my room, the nature, my loved ones, the beautiful sunrise, the smile on my loved one's face. Each and everything that I do is only possible because of my eyes. You remember? What do you remember? Each and every color, each and every, smile, the beautiful places that you have been to, all you can recollect because you could see them. Thank you for my eyes that enable me to see each and everything. Thank you, thank you, thank you. What about your ears? The call of your mom, your child calling you, your friends calling you, listening to songs, Lata Mangeshkar, Neha Kakkar, bhajans, the bell in the temple. All the sounds that you can hear is because of your ears. Talking to the phone is so amazing because you can hear the other person. Can you hear the music now? The jokes that you laugh at. Each and every sound that you hear is because of your wonderful ears. Thank you for my hearing. Thank you, thank you, thank you. Wow, my super powerful, creative, and amazing brain. That is the most miraculous gift that I have got. Each and everything that I have been doing the whole day, all my life, is possible because of my brain. It controls my senses, it controls my actions, my reactions, my response. Each and everything is controlled by my brain. All the body organs work as per my brain. No computer technology can duplicate it. Wow, the best creation, the best gift from God. Say thank you for my brain and my beautiful mind. Thank you, thank you, thank you. All that I could recollect, visualize, imagine was because of my brain. Thank you. What about the trillion cells in my body? They are working all the time, non-stop, 24/7, giving health, vitality, fitness, nourishment to each and every organ of my body. All the actions, systems work unanimously in giving me a good, healthy life. Thank you, organs, for working perfectly. Thank you, thank you, thank you. When you were remembering your childhood, did you feel something in your heart? Some emotion? Recollecting your holiday? My strong and healthy heart helps me emote better, respond better. It pumps and supplies blood
and oxygen to all the organs, all the cells. When you look at your mom, it goes aflutter, it becomes happier. When you look at your child, when you look at your loved one, your boyfriend, girlfriend, husband, wife, it's your heart which signals you. It has been there even before you were born. Your heartbeat was the first happy sound of yours that your mom could hear. So thank you for my strong and healthy heart. Thank you, thank you, thank you. Now feel the wonder of your body. Each and every sense organ, your legs, your hands, your heart, your mind, each and every system in your body, they are all working in harmony to give you a healthy life. Keep breathing. Take a deep breath in and a long breath out. Thank you for my wonderful body. And gently and slowly open your eyes when you're ready. We'll continue with the practice. Okay. मेडिटेशन करवा दिया आप. Yeah. Okay. Thank you. After a long time. Thank you. Yeah. Actually feeling so light, एकदम हल्का सा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, very good. Thank you. This is what is there in the chapter, okay, that you have to read on your own. So I have, done a little bit of a visualization kind of a thing so that you feel it a little more. Okay. तो आप लोग को ये जो हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ये आपको अपने आप पढ़ना है बाद में. Okay. I strongly recommend that आप इसको पढ़ लो तो और अच्छा रहेगा. Yes. And we'll continue what is the actual practice for tomorrow. Okay. Thank you, Priya ji, for a beautiful meditation. Thank you, Balini ji. Thank you, everyone. Yeah. So, Sarang, you ready for reading? Yes. Yeah. So let's start from here and understand what we have to do for tomorrow. Yeah. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Yeah. So what you have to do is you have to take a plain paper, okay, and you have to write this line. The gift of health is keeping me alive on it in bold capital letters. ठीक है. और बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. बिल्कुल ऐसे ही. कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, कुछ डिलीट नहीं करना है. और देखिए उन्होंने सबको कैपिटल में लिखा है तो आपको भी सब कुछ कैपिटल में लिखना है. ठीक है. आपको ये पेपर में लिखना है, मे बी अ स्मॉल पेपर, एंड उस पे लिखना है और आपको उसको ऐसे जगह रखना है जहां पे आप उसको देख सको. आई वुड सजेस्ट आप लिखो इसको, टाइप करके प्रिंट करके नहीं, फोन पे नहीं, यू हैव टू राइट इट. ठीक है. और आपको उसको ऐसी जगह लिखना है जहां पे आप उसको बार बार देखो और आपको बार बार ही दिन में पढ़ना है. जैसे आज हमने फोटोग्राफ्स दिन में 3 बार देखी थी, ठीक वैसे ही ये कार्ड हमको अब से हमारे पास रखना है. लाइक आई हैव 2 of them. One I have stuck it on my laptop.
एक छोटा सा वो पोस्टेड पे लिख के यहाँ रखा हुआ है, एक मेरे मिरर पे लगा हुआ है बाथरूम में, सो दैट व्हेनेवर आई सी इट आई रीड इट एंड आई फील ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ दैट आई हैव गॉट फ्रॉम गॉड. ओके, सो आई थिंक दिस इज इजी. बस आपको any particular color? just don't use black for writing. That's what I, ऐसा कुछ और इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, but I don't use black for writing any of this. ठीक है, आपको रेड में लिखना है, ग्रीन में लिखना है, किसी पे भी लिख सकते हो आप, but black अवॉइड करिएगा. Okay, so let's continue. Today on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. या तो आपको क्या करना है, ये जो आपने लिखा है, एक ही बार लिखा है आपने उसको, ठीक है, बट ऐसा मत लिखिएगा एकदम फ्लिम्जी से पेपर पे मत लिखिएगा, क्योंकि जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम से लिखा है उनका ये कार्ड अभी तक चल रहा है. अगर वो खराब हो गया होगा तभी उन्होंने उसको न्यू बनाया होगा, राइट. मेरा तो फर्स्ट सेशन का ही चल रहा है अभी तक, वो अभी भी चिपका हुआ है यहाँ पे, और एक ये यहाँ पे भी चिपका हुआ है, लाइक ऑन माय लैपटॉप. ये हमने रिसेंट लास्ट सेशन में बनाया था. आई सॉ समवन हैड शेयर्ड इन द सेशन, अभिजीत जी, कि उन्होंने अपने लैपटॉप पे इसको चिपका के रख लिया. इफ यू आर वर्किंग यू लुक एट इट. एंड रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस कि हम जब भी ये पढ़े उसको धीरे से, ग्रेटफुल, धीरे से मतलब लाइक इन अ स्लो पेस, बट वी हैव टू फील ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ दैट वी हैव गॉट. ओके, और कल दिन में हमको 4 बार करना है. अभी जैसे आज हमने आपको 2 बार याद दिलाया कि आप फोटो देखो, थर्ड टाइम बाकी है. आई थॉट अभी सेशन के बाद आप लोग सब लोग फिर से फोटो देख लेना बिफोर डूइंग योर मैजिक लॉक. वैसे उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस करनी है. यू कैन कीप ऑन डूइंग दैट वन. कल आपको 4 बार वी विल रिमाइंड ईच अदर कि हम लोग को 4 बार ये नोट तो देखना ही देखना है, एटलीस्ट 4. ठीक है, आप यहाँ देखिए, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस ऑन एटलीस्ट 4 सेपरेट ओकेजन्स. ये नहीं कि सेपरेट ओकेजन्स, she knows we are very smart. भूल जाएंगे तो एक ही बार 4 बार पढ़ लेंगे, पढ़ लिया 4 बार. नो, आपको ये 4 बार दिन में एटलीस्ट थोड़े थोड़े टाइम डिफरेंस में करना है. इट शुड नॉट बी कि एक ही आधे घंटे के अंदर आपने 3-4 बार कर लिया. ओके, सो दैट यू हैव टू स्प्रेड इट ड्यूरिंग द डे, एंड वी हैव टू फील एज ग्रेटफुल फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. या इजी. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction and conventional medical treatments, we would use a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. Yeah, so being grateful for our health is essential to keep our health. ठीक है, माने अगर हम लोग grateful रहेंगे तभी हमारी हेल्थ, जैसी भगवान जी ने हमको बना के भेजा था, या उसमें जो भी हम लोगों ने अभी अप डाउन कर लिए हैं वो वापस सब ठीक हो जाएंगे. ठीक है, सिर्फ यही नहीं होगा, हमारे लाइफ में एनर्जी बढ़ जाएगी और हमारा जोश आ जाएगा हमारे लाइफ के अंदर. ठीक है, सब बोलते ना हाउस द जोश, वो वाला जोश आ जाएगा हमारे अंदर. ठीक है, एंड अब रॉन्डा बर्न हमसे ये भी कह रही है, अगर हम लोग जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके संग में अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करेंगे, कितने मतलब कितनी कड़वी गोली खानी पड़ रही है, कितना कड़ू है, कितनी बार दवाई खानी पड़ती, कब से दवाई खा रहे हैं, क्या हो रहा है, आप बताइए क्या कर रहे हैं. वो दवाई आपको फायदा करने वाली है, आप इसलिए वो खा रहे हो, राइट, वरना आप नहीं खाते. और आप उसको क्या बोल के अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो. इट्स लाइक घर में कोई आ रहा है, आ जाओ तुम भी आ जाओ, ऐसे आप किसी को वेलकम करोगे? नहीं, आप तो जो भी घर में आ रहा है आप तो उसको अच्छे से वेलकम करोगे. तो इट्स लाइक यू आर टेकिंग द मेडिसिन एंड यू आर अब्यूजिंग इट काइंड ऑफ, एंड देन यू आर टेकिंग इट. कितने बार होता है ना, लाइक होता है ना, रोज नहीं तो कभी कभी तो आता ही है ना ऐसे मन में, व्हेन यू आर टेकिंग सम मेडिसिन, या कि इतनी बड़ी है, अटक गई गले में, कि क्या हो गया, साइड इफेक्ट्स हैं उसके, हम लोग ये सब भी गूगल कर लेते हैं. तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड के संग संग, not just for the medicine but everything in life, and especially for the medicines that you're having, for the food that you're having, anything that you feel is going to help you heal faster, तो आपको ग्रैटिट्यूड के संग अगर आप उसको लेते हो, उसको यूज करते हो अपने हेल्दी उसके लिए, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल्स होने वाले हैं. ठीक है, सो दिस वाज द चैप्टर. लेट्स जस्ट रीड द प्रैक्टिस. लाइक अगर हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो बीमार है नेचुरली, यानी जो हम लाइफ लॉन्ग लेने वाले हैं, आगे हमें मालूम है लाइफ लॉन्ग लेने वाले हैं वो मेडिसिन, तो उसके लिए कैसे, किस तरह से ग्रेटिट्यूड फील करेंगे? बिल्कुल, आप सोचिए, अगर आप ये देखिए ना, अगर आप वो मेडिसिन नहीं ले रहे होते, ठीक है, तो कैसा होता. एक दिन अगर वो अगर आपकी वो रोज खाने वाली मेडिसिन है, अगर आप एक दिन नहीं खाते हो, लाइक आप बोलिए भी मत कि वो कौन सी मेडिसिन है, ठीक है, डोंट टेल अस
कि आपको क्या ब्रेकडाउन है। हाँ, हम जस्ट आपको ऐसी एग्जांपल देते हैं। सपोज वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, अगर आप एक दिन नहीं खाते हैं तो क्या होता है, आप रेस्टलेस रहते होगे, आपका बीपी थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता होगा, यू नो, आप इरिटेट जल्दी हो जाते हो, गुस्सा आ जाता होगा, या सपोज कोई पैनक्रियास की उसकी इंसुलिन लेता है, तो क्या होगा, तो भी आपकी हेल्थ में उस टाइप की चीजें हुई। तो एक्चुअल में तो वो आपको हेल्प करिए, हाँ, हेल्दी आपका दिन जाने के लिए, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल रहने के लिए, तो आप उसको तो और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, है ना। अब जैसे मेड होती है, जब वो लॉकडाउन में चली गई थी छुट्टी पे, तब आपको नहीं लगा था कि ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट है, नहीं लगा था ऐसा? हमको तो बहुत लगता है। बहुत ज्यादा। और वो जब रहती थी तो आपके ऊपर कितना गुस्सा आता था उसको, आपके ऊपर नहीं, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, आपको उसके ऊपर कितना गुस्सा आता था एट टाइम्स, राइट। हाँ, ये नहीं करती, खाना नहीं अच्छे से करती, नहीं बनाया, नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। हाँ, तो आप जब वो नहीं थी तब उसकी वैल्यू समझ में आ रही थी, तो जब वो रहती है, जब वापस आ जाती है छुट्टी से, तो भी 2 दिन तो बड़ा प्यार रहता है उसके संग, है ना, नहीं रहता है? या तो ये भी आप सोच लो, वाइफ की जब चली जाती, सी दीज आर ऑल जोक्स, आई डोंट हैव अ वाइफ, राइट, नीदर एम आई अ वाइफ, जोक्स भी रहते हैं। जब मायके चली जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, थोड़े दिन बाद मिस भी करते हो, तो आते हो तो फिर भी प्यार भी रहता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो जो मेडिसिन आपको रोज खानी, उसको तो और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपको इतने अच्छे से हील कर दे कि आप उसको टाटा कर दो, यू से ओके, अब हम परफेक्टली हेल्दी हो गए, यू डोंट नीड दैट एनीमोर, या उसके लिए और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है। Yeah, and not just for the medicines. Rhonda One is telling us gratitude in general for each and everything will keep you happy, will make your cells function better, and will keep you fit and fine. Yeah, that's it. Magic practice number 4, magical health. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. तो ये आप सब लोग डेली कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हमने ना इसी सेशन में नोटिस की, रॉन्डा वन ने हमेशा हमसे कहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स, उन्होंने ये नहीं कहा है काउंट ब्लेसिंग्स। ये क्यों कहा उन्होंने योर ब्लेसिंग्स? क्योंकि जनरली अपन क्या करते हैं, ये हमने ऐसी मन में आया, आई डोंट नो, इट कुड बी जस्ट समथिंग दैट आई थॉट ऑफ, इसलिए बोला होगा उन्होंने काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले का, उसकी सैलरी कितनी है, उसके पास कितने सेट हैं, राइट, उसके पास कितनी गाड़ी है, उसकी ब्लेसिंग में अपन जब लग जाते हैं तब हमको हमारी ब्लेसिंग्स दिखती नहीं है या कम लगती है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, ऐसा होता है ना। सो आई थॉट दैट इज व्हाई शी इज सेइंग फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स, फोकस ऑन योर ग्रेटिट्यूड, नॉट ऑन समवन एल्सेस। तो आप भी जब कल से ब्लेसिंग देखोगे, जस्ट थिंक ऑफ इट कि आप नॉर्मल में क्या करते हो, दूसरों की चीजों पे हम लोग का ध्यान उतना ही रहता है, अपने पे शायद थोड़ा कम रहता है। सो लेट्स फोकस ऑन आवर ब्लेसिंग्स फ्रॉम नाउ। On a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. On at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. तो आप देखिए यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रही हैं विद योर रिटन वर्ड्स, ये नहीं कि आपने लिखा और हस्बैंड को भी पढ़ा दिया, हाँ, बच्चे ने लिख लिया आपने पढ़ लिया, नो, यू हैव टू राइट योर कार्ड, ठीक है। जैसे आपको अपना मैजिक रॉक खुद रखना है, वैसे देखिए वो पढ़ लेगा, उसके में भी फीलिंग्स आएंगी तो अच्छी बात है, बट कुछ एक रीजन होगा दैट शी इज टेलिंग अस टू राइट इट, ठीक है, विद योर रिटन वर्ड्स। तो आपको लिखना है, उसको एक जगह कहीं पे रखना है और दिन में 4 बार उसको पढ़ना है। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. So thank you Sarang for reading for all of us. Thank you so much. Thank you. अच्छा, I just wanted to say, ये visualization जब हम करते हैं, I just assume that everyone's, it is like a general visualization. अगर आपको उसको करते टाइम, you felt upset और या किसी को मैंने hurt कर दिया, तो I'm really sorry. Okay, like I just thought of some general things. So I'm sorry for that if I have hurt anyone. तो आगे भी अगर हम No way you didn't do. हो ही नहीं सकता, आप तो इतना स्वीटली बोल रहे हो। नहीं, see, I come up with some general things in life. अब मेरे को नहीं पता आपके बचपन में क्या हुआ या अभी क्या हो रहा है, तो I'm just trying, अगर अब मैंने कुछ कहा और आपके उसमें नहीं था, so I should have thought of it earlier. अगर आपको लगा कि नहीं, हम जो कह रहे हैं आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, तो आप उसको कुछ दूसरी हैप्पी चीज से अपने मन में विजुअलाइज कर लेना, ठीक
ठीक है. In the future also we will do some visualizations like this. तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं जो आपके लाइफ में थोड़ा सा 19-20 है, तो think of a happy thought. Don't go in whatever I am saying and start feeling sad. Okay. अच्छा, एक और चीज मेरे को बोलना है. Though we were supposed to finish off by 9:45, but थोड़ा I think आगे बढ़ जा रहा है. So from tomorrow onwards we'll take sharings, questions after the reading. You know, because someone might have to go early, so we'll start 9:45, start reading around 8:50, and फिर उसके बाद हम लोग अपना वो कर लेंगे, ठीक है, sharings. So let's join our hands, pay gratitude to the supreme power, then wish Madhu ji a happy birthday. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the beautiful 5 elements of nature. Thank you for giving me abundance in each and every sphere of my life. Thank you for the good and happy relationships that I have, the beautiful life that I have with my family and friends, and the best of health that I have been bestowed. Thank you, thank you, thank you. So yes, Madhuji, wish you, I think let's do a happy birthday song for her. Yeah? Yes. 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 Yeah, so just 1 second. Please सब लोग unmute हो जाइए. So happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, birthday, dear. Happy birthday to you. Really amazing, so amazing. I can't tell you. Really, really. Okay, excellent. So Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Very nice. Okay. Lots of happiness. Yeah. Yes. So any sharing or question about the practice? किसी के लाइफ में कुछ अच्छा फीलिंग हो रहा है, आज आपको अच्छा लग रहा था, या जो आज आप 2 दिन से या 3 दिन से आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, हाँ, तो मे बी आपको सडनली कुछ हैप्पी चीज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, ऐसा कुछ? जी, प्रिया जी, I would like to share something. Yes, Kavita ji. Yeah. Actually, to upgrade myself, I was thinking of taking admission for cosmetology course, and fees थोड़ा ज्यादा था, and अभी recently लेह लद्दाख जाके आई थी, तो I was like, अभी तो कोई FD भी matured नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे? तो I asked my friend for a credit card, then he said okay, कोई problem नहीं है. But when I searched it, I found कि 14% interest जा रहा है 6 महीने के लिए, तो I was again कि नहीं करना है. तो then I again asked वो इंस्टीट्यूट में कि मुझे पार्ट पेमेंट का ये ऑप्शन मिलेगा क्या? Then they said कि जब आपका पेमेंट पूरा होगा तभी आपका कोर्स चालू होगा. I was searching for something, अभी क्या करेंगे? And 2 days I was giving concentrated gratitude. I have taken admission to this course. It has happened. I've got the sponsored one more extra course also with it. I'm doing well. Lessons चालू हो गए हैं. I'm enjoying that course and all. 2 दिन पूरा concentrated gratitude किया. An unexpected amount came into my account, which generally hits in March. This March it had not come, and suddenly, unexpectedly, it hit. And the same amount which I have to pay for the course was that. Wow. That's wonderful. So I did it immediately. I paid, I took the admission, and my course started also since 4 days. Wow. This is seriously amazing. This is actually magic. Yes, it's a magic. छोटे मैजिक तो होते ही रहते हैं, बट दिस वाज लाइक एकदम से ये मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी कि अरे क्या हो रहा है, आई एम डूइंग बट आई एम फीलिंग समवेयर ऐसे लग रहा था. But then concentrated gratitude किया and I got it, so it was it is still there and I am on the track. Thank you, Priya. I also want to share. Okay, thank you, Kavita ji, and I'm yes, Sandhya ji, just once again, Kavita ji, you will rock your session course. Yes, you'll be amazing in that. Okay. Of course, yes. Thank you so much, everybody. Thank you. Yes, Sandhya ji, please share. हाँ, तो मैं ग्रेटिट्यूड डेली लिखती हूँ और प्रैक्टिस भी कोशिश करती हूँ पूरी करूँ. कभी कभी मिस हो जाता है कुछ, ठीक है. थैंक यू बोलती हूँ रोज सुबह उठ के.
और मेरी हेल्थ भी पहले से काफी अच्छी हो गई है. ठीक है. आई फील गुड. ओके. एंड मेरी डायमंड रिंग टूट गई थी एंड मैंने ड्रीम में लिखा था कि मुझे नई डायमंड रिंग चाहिए. तो ये मैंने 3 मंथ्स पहले लिखा था. सो आई गॉट मनी. इधर उधर से काफी सारे तो हो गए 60,000. तो माई डॉटर शी सेड, माँ चलो एक डायमंड रिंग लेते हैं. I don't know how she knows and how she clicked, and then we went and we bought. See this. Okay, zoom करना पड़ेगा. रुकिए. Yes. Okay. Wow. दिख नहीं रही है. थोड़ा सा आप इधर करिए. We can't see. देखिए diamond. Yes, now we can see. Diamond is like amazing. जिसको भी चाहिए ना आप लोग. Beautiful. Dream actually wonderful. And 60,000 की हुई है and I got बराबर 60,000. Wow, excellent. Wow. Priya, one thing I want to ask. Yesterday it was my first session. Thank you, Priya. Thank you. Thank you. It is all you and your gratitude that has, got you that diamond ring. Yeah. Okay, thank you. Yes, Priya, actually I could not write blessings today because yesterday was my first session. So I could not go through the first 2 sessions, So can I write it now? Yes. It's already 10. Yeah, you can write 10 blessings every day? Yes, but aaj aap abhi likh lo, but it has to be in the morning. Okay? Morning. Or you want, I can, okay, if you suggest, I can start from tomorrow morning. See, whatever is your suggestion. See, I would, if you have time, best is to do it now only. Okay? Because I have time now. Yeah, so you please do it. बहुत अच्छा लगता है, and you'll उसके बाद when you do the magic rock also, you'll have a wonderful sleep. Okay? And you'll be, happier when you get up as well. Yeah? Okay. Yes. Yeah. Thank you. So I need to write today and tomorrow as well in the morning. Yeah, yes. आज का तो आप आज का कर रहे हो, right? It's like if you haven't brushed in the morning and you're not feeling nice, you'll brush at night. But again, tomorrow morning you will brush, right? So it's like that. Right. Every day. Every day, yes. Yeah. So, it's so good to hear their experiences. I hope I'll also feel the same. Definitely you will also. You will be sharing before the, right in the middle of the session only you'll start sharing. And everyone will experience the magic. Everyone. Oh, wow, that's wonderful. Waiting for that to happen. Actually, magic keeps on happening continuously. Small magics keep on happening. Yeah. Yes. And the more you share, ये बताना बहुत जरूरी है. The more you share, the more the magic will happen in your life. Why? ज्यादा लोग सुन रहे हैं. Yes, ज्यादा लोग कनेक्ट हो रहे हैं. ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, but yeah, sharing is caring तो है ही definitely. But क्या होता है when you are sharing, तो आप क्या कर रहे हो? What you are giving, आपने एक शेयर किया तो आपके लाइफ में और चीजें आएंगी शेयर करने के लिए. ठीक है? एंड क्या होता है इस ग्रुप में शेयर क्या होता है, पीपल अंडरस्टैंड. ठीक है, बोला उसके संग हो रहा है, मेरे संग भी हो रहा है, हमारा तो ऐसे थोड़ा सा ह्यूमन नेचर इसी टाइप का ना. अभी तो हम पूरा ग्रैटिट्यूड में रंगे नहीं है, तो थोड़ा सा उसके संग हो रहा है, मेरे संग क्यों नहीं हो रहा है. तो आपको लगेगा कि अरे ग्रैटिट्यूड कम कर रहे हैं ना, इसीलिए. प्लस पिछले के आपने इतने सारे कंप्लेंट्स किए होंगे, उनको भी तो बैलेंस बनाना है ना. अभी जो इतने कंप्लेंट्स किए हैं into 10 आपको ग्रैटिट्यूड करने हैं. दैट्स व्हाई आई सेड जिसने नहीं भी किया है अभी आप ब्लेसिंग्स लिखना स्टार्ट कर दो. तो एटलीस्ट एक तो कंप्लेंट को हर एरिया में या किसी भी एरिया में एक कंप्लेंट तो कम होगी और मैजिक आना स्टार्ट हो जाएगा. वो एक डंडी ऑफ एक चुटकी सिंदूर नहीं, वो एक डंडी ऑफ चार्जिंग इज ऑल्सो सो क्रूशियल ना. जो थोड़ा सा बचता है, अरे इतना सही है, जल्दी से लो पावर मोड एंड ऑल दैट वी स्टार्ट डूइंग. तो आपका वो ग्रैटिट्यूड एक ग्रैटिट्यूड काम करता है. ठीक है? So this is a wonderful session. We'll keep learning so many new things and revision भी होता जा रहा है. जैसे आज उन्होंने concentrated gratitude बोला और किसी ने पूछा, आप करते भी रहोगे ना खुद भी, आपको पता ही नहीं चलेगा अच्छा ये तुम concentrated कर रहे थे. जैसे आज जो आपने 5 blessings लिखी थी, what was it? एक जन के लिए आपने 5 चीजें लिखी हैं. It's a concentration of blessings that you have done for one person.
या सो दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड. आपने उस पर्सन के लिए 5 की. अब क्या होगा अगर आप, हम लोग आगे सेशन में पढ़ेंगे, अगर कोई एक चीज या एक जन के लिए आप चाहते हो कि अच्छा हो जाए, आप क्या करोगे, उसके बारे में आप ब्लेसिंग्स लिखते जाओगे. उस पर्सन के बारे में आपका पूरा फोकस उसी जन के ऊपर है, उसी एरिया के ऊपर है, उसी हेल्थ इशू के ऊपर में है, आपका पूरा फोकस उसी पे है. तो क्या होगा, वो डेफिनेटली फ्लरिश करेगा ना. आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट, एक को ज्यादा केयर चाहिए और आप उसको केयर कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली जल्दी हील होएगा. जो भी उसकी इशू थी वो अच्छे से फ्लावर करने लगेगा. इट इज जस्ट दैट. तो ये हमने कल भी पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड, और अच्छे से हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे. ओके, सो टुमारोज प्रैक्टिस इज अमेजिंग. आप जब खुद अपने हेल्थ के एरियाज में जो ऑलरेडी अच्छे हैं उनके ऊपर ग्रेटिट्यूड करोगे, बाकी एरियाज ऑटोमेटिकली अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे. ओके, so anything else that we need to share, ask? मुझे कुछ पूछना था. हाँ, सॉरी, मैं डेली पूछती हूँ कुछ. अरे सॉरी नहीं बोलना है. See when you are, हाँ चल ठीक है, I will speak less. Yes. नहीं सॉरी, इंटरप्ट करिए बार. तो मैं एक्चुअली मेरे पापा का थोड़ा सा चैलेंजेस रहता है हेल्थ का. तो उनके लिए क्या कर सकता है, हम कर सकते हैं कुछ कि वही करेंगे? उनको ही करना पड़ेगा. आप अपने ड्रीम में लिख सकते हो, ठीक है, बट उनकी हेल्थ के लिए वही कर सकते हैं. लाइक यू कैन ओनली डू फॉर योरसेल्फ. एक्चुअली मैं वो ये सब पे विश्वास करेंगे कि नहीं करते, आई डोंट नो. व्हाट यू डू इज, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, व्हाट यू डू इज यू राइट इन योर ड्रीम अबाउट हिज हेल्थ. ओके, दैट इज द मैक्स दैट यू कैन डू. एंड जब भी वो कुछ बोल रहे हैं कि हेल्थ में ये है वो है, बोले नहीं पापा सब ठीक है, आप अच्छी बातें बोलो, यू नो, बी लाइक दैट. सेट एन एग्जाम्पल फॉर हिम. वो कुछ बोल रहे से हम लोग का नॉर्मल में क्या होता है, कोई अपनी बात बोल रहा होता है, हम लोग हाँ हाँ ऐसा हो रहा है, अच्छा, और डिटेल में अपन जानना चाहते हैं. जानना चाहते नहीं है तो उनको अच्छा लगता है, हर जन को अच्छा लगता है ना. इसके पहले वी वुड कॉल एंड से एवरीवन, पता है ऐसा हुआ, कल से दर्द हो रहा था, आज तक हो रहा है, पिछली बार इतना दर्द नहीं हुआ, इस बार तो इतना दर्द हो रहा है. दिस इज व्हाट वी डू. वी टॉक अबाउट आवर हेल्थ प्रॉब्लम्स. या नो प्रॉब्लम वर्ड हमको पता ही नहीं. चैलेंजेस के बारे में. तो जितना ज्यादा बात करते हैं वो उतनी ज्यादा और आने लगती है लाइफ में. ठीक है, तो सामने वाला भी बात कर रहा है और आप सुन रहे हो, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, मतलब आप उसको और एनकरेज कर रहे हो कि उसके लाइफ में वही चीज है. ठीक है, तो वो भी नहीं करना है. उसका ध्यान, उनका ध्यान आप हैप्पी चीजों. यू हैव सीन सीक्रेट? हाँ, देखिए उसको, देखिए दे आर जस्ट वाचिंग कॉमेडीज. या मेक योर डैड वॉच कॉमेडीज. कपिल शर्मा अच्छा लगता है, हेरा फेरी अच्छी लगती है, जब भी मैट अच्छी लगती है, जो कॉमेडी चीजें उनको अच्छी लगती हैं, जस्ट कीप दैट ऑन. ठीक है, एंड मेक हिम लाफ एज मच एज पॉसिबल. सराउंड हिम विद हैप्पी वाइब्स. ठीक है, तो डेफिनेटली इससे तो स्टार्ट हो गई इम्प्रूव होना. थैंक यू. और आज मैंने हेल्थ के बारे में 3-4 लिखा था और आज हेल्थ के बारे में ही पढ़ लिया. कोइंसिडेंट. या यस, अमेजिंग. बिल्कुल ऐसा होगा ही. अच्छा, कोइंसिडेंस के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे. या थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस, तुलसी, यू वांट अ शेयरिंग? आई मीन यू हैव अ शेयरिंग? नो, यू हैवंट स्पोकन. अच्छा नहीं लग रहा मेरे को. Don't have any sharing now. Okay, ठीक है. So means more gratitude. This session you have a lot of sharings ना. अच्छा लग चुका हूँ. कोई बात नहीं, एकदम भी नहीं. नहीं, बहुत सारे लोग हैं बोलने, अच्छा लग रहा है. वो ठीक है, but change I am listening. हाँ नहीं कोई बात नहीं. You have to speak. हम तो बोलने वाले थे, इसका मतलब तुलसी ग्रेटिट्यूड कम हो रहा है. I was about to say that. 100%. ठीक है, so let's do more gratitude. अच्छा, थर्ड टाइम आपको फोटोग्राफ्स जिसने नहीं देखी है प्लीज आपको देखना है और थैंक यू बोलना है फोटोग्राफ देख के. ठीक है, अच्छा इससे अभी सब लोग चले गए वरना बताते. पहले की मूवीज में अपन देखते थे ना, या अभी भी करते होंगे लोग, वॉलेट में फोटोज रखते हैं लव्ड वंस के. या तो अब आप देखो, बिल्कुल रौंडापन हमसे वो ही कह रही है. ऑफ कोर्स हम लोग वॉलेट में अब नहीं रखते हैं, फोन इज लाइक दैट ओनली. अब आपको क्या करना है, फोटोग्राफ्स देखनी है और थैंक यू बोलना है और अपना रिलेशनशिप को और अच्छे करते जाना है. यस, ओके. आई वांटेड टू आस्क, लाइक आज हमने 3 लोगों की फोटो रखी, क्या कल हम 3 कोई और की फोटो रख सकते हैं या वी शुड कंटिन्यू विद दीस 3 ओनली फॉर? टोटली ऑन यू. इफ यू फील दैट दीज रिलेशनशिप्स नीड मोर इम्प्रूवमेंट, आप चाहते हो कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इट्स लाइक योर
भगवान यही 3 हैं, तो फोकस ऑन दीज. बट इफ यू फील कि नहीं ये 3 तो अच्छे हैं, चलो आज इन 3 पे वर्क कर लेते हैं. यू हैव मोर पीपल इन योर लाइफ व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू यू, यू कैन फोकस ऑन देम. ओके, you can do that. Yeah. Okay, some people do for the same 3 photographs every once a week. ऐसा भी कई जन ने शेयर किया था like message में that they do this practice on and off, क्योंकि ये लोग important है. आप चाहते हो इनके संग हमेशा ही रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो वो रेगुलर बेसिस पे उसके संग करते रहते हैं. That way. Just one last. Someone was saying something, no? I don't know. Yeah, I was saying like if there is this 3 person about whom I have written. So tomorrow, even if I want to do it for the same person, same 3 person, I do not have to write it, right? I can just see the photographs and say the thank you. So if, when I'm doing it for a 3 new person, then I'll write it and then repeat those picture thing, right? Yes, but the practice is writing. Okay, so but if you feel that no, my relationship is okay, like abhi अच्छी चल रही है, so you can just look at the photograph and do it. Okay, but if you feel कुछ आपने complaint हो गई, then you have to write. Okay, thank you. Thank you. Yes, yes, someone else was also asking something, but yeah, yes, please take your name also, because I'm sure you are not Devansh. No, my name is Mrs. Preeti Sanjay Jawar. Okay. एक्चुअली मुझे ये सेशन ज्वाइन करना पर मेरा हो नहीं रहा है. मेरा दूसरा मीटिंग रहता 9 to 10. आज थोड़ा टाइम था तो जल्दी मीटिंग हो गई तो मैं ज्वाइन मैं पूरा मिस कर गई हूँ ये सेशन. जैसे आपने अभी फोटो के बारे में बोला, तो क्या करना है वो? तो देखिए कल का पूरा सेशन था, वो तो पूरा तो मैं नहीं बता पाएंगे. आप क्या करिए ना, अगर देखिए 2 चीजें हैं, या तो आपको दूसरे टाइम, अगर आपको लगता है कि नहीं लाइव सेशन ही करना है आपको, ठीक है, तो आपको आप नहीं कर पा रहे हो मैनेज, तो आपको दूसरे टाइम पे करना पड़ेगा. नहीं तो आप ये कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लीजिए. अभी जैसे अगर आपका आज का भी छूट गया है, तो कल का तो देखिए अपना प्रैक्टिस है, हेल्थ नोट बनाना है. आज का भी आप नहीं सुन पाए क्या? नहीं. तो आपको ना थोड़ा सा दूसरा टाइम कौन सा है लाइव सेशन का? अभी तो हमको नहीं पता. अभी लाइक जैसे पता चलेगा ना, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे. अभी तो एक भी मेरी फ्रेंड्स नहीं स्टार्ट किए, करेंगी जैसे ही हम वैसे ही शेयर कर देंगे. ठीक है, जो मेरे को पता चलेगा आई विल शेयर इट इन द ग्रुप. चलो, जो रिकॉर्डिंग वो तो मैं थोड़ा थोड़ा सुन रही हूँ, जैसे भी होता है वैसे. हाँ, देखिए अगर आपको रिकॉर्डिंग में ज्यादा टाइम लगेगा सुनने में, तो आप चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है, एंड प्रैक्टिस कर लीजिए. यू कैन डू दैट ऑल्सो, बिकॉज चैप्टर पढ़ना इज, आई थिंक, सुनने में थोड़ा तो I think people will share रहता है, but you can read and do it as well. लाइव सेशन में जो मजा है पर वो उसमें नहीं है. हाँ, but ये तो आपको डिसाइड करना है. हाँ, take that call for you. कम रहेगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, ग्रुप में मैसेज डालना. ठीक है, thank you. Yes, so should we call it a night? Yeah. Yes. Okay, so see you all tomorrow. Good night and have a good day tomorrow. Yes. Yeah, thank you. Bye bye.